CV is one of the most important documents that creates a major role in your selection. Hello everyone, this is Mohammad Naeem. So basically I'm an Erasmus scholar and today I'm going to share my experience and the tips and tricks which I applied while creating my Europass CV, and my CV was standard out and I could win 3 world's top scholarships. So without wasting time, let's get started to create one complete Europass CV in which I would tell you which things we need to consider and which don't. So let's get started. सबसे पहले आपने लिखना है Europass फॉर्मेट CV. पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे. अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं. अदरवाइज जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं. So when you would click on the login, we are creating first of all account. Just you need to put the email you want to use, some initials, and confirm your email. I'm creating a new account, though I already have my account, but just to have an understanding for new students, so I'm creating a new account. It can take up to 60 seconds, so let's wait for it. So verification हमारे पास आ चुकी है. We just need to click on the link to verify our account. So now we can set the password. You can set any of the password which you use, which you would prefer. Okay, let's proceed to start our CV from scratch. So we would prefer the English language. Okay, now we are going to logging in. Okay, we are creating our CV for first time. Okay, we can directly skip these steps because we can add all the steps in a sequential order. Okay, first I'm providing my name and my last name, so it is asking for these information. Okay, we are going to skip these. Okay, so first we are going to my library and create a new CV. So we are creating a new CV from scratch. If you already have an account and you already have a CV, so you can select from my library or import a CV from your files, but now that's not the case. We are creating from scratch. तो ये यूज़र इंटरफेस है यूरोपास की CV का. सिंपली आपने जो डेट फॉर्मेट मैं प्रेफर करता हूँ ये है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हैं. So first we need to provide a general information, that is basically the personal information. Personal information में it is not mandatory to put the summarized form summary of you, because I don't prefer to add the summary, so we can keep it blank. We don't need to put the date of birth. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें जो काइंड ऑफ रिपीटेशन है, हम बहुत सारी चीज़ें मतलब जब हम कहीं पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं हम ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन several जगह पुट कर चुके होते हैं. So it would not gain an added value for your CV, so we don't need to consume the space. We just need to mention our gender, our nationality, like we are Pakistani, our email address, our phone number. Here I'm going to put my phone number, my Pakistani number. It's just a random number, you can put your own. एंड जब सोशल मीडिया की बात की जाए तो आपने सिंपली अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल पुट करनी है. लिंक्डइन की प्रोफाइल आपने अपडेट रखनी है. आपने अपने अकाउंट पे जाना है, अपने अकाउंट का URL कॉपी करना है और आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है. You don't need to put any other information, like your address is not mandatory. You just need to put your country, because these people are not interested in your
address. You can save this information. Okay, now we can add one photograph here. You can put your photographs, any of the formal photo. I'm just putting this one just to fill the space to get guys. Okay, so this is crucial step. Like if you are a student in final semester or just graduated and you don't have a permanent job or the full time job, तो आपको रखना चाहिए सबसे पहले एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अगर आपकी कोई परमानेंट जॉब है या आपका कोई एक्सपीरियंस है 1 साल या 2 साल, लाइक इफ़ यू आर नॉट अ फ्रेश ग्रेजुएट, यू शुड सिलेक्ट द वर्क एक्सपीरियंस ईयर. तो मैंने सिलेक्ट किया है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ मैं एक मास्टर्स एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ या जस्ट कंप्लीटेड माई बैचलर्स. तो यहाँ पे मैंने अपना टाइटल पुट करना है जैसे बैचलर Okay, so my university was Sir Syed University of अपनी यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पुट कर सकते हैं. फॉर रैंडम वेबसाइट आई एम पुटिंग द वेबसाइट ऑफ माय इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच आई एम स्टडीइंग हियर. आपने एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं पुट करनी है जैसे यूनिवर्सिटी का एड्रेस और इस तरह की चीज़ें that are not mandatory. You can put the city, then you can select the country. That's it. आपने अपने एजुकेशन का भी स्टार्ट की थी, तो मैं अपनी अगर एजुकेशन की बात करूं तो मेरी 1 जनवरी 2018 में मैंने अपना बैचलर्स स्टार्ट किया था फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड आई कंप्लीटेड इन ऑलमोस्ट that is simply the 4 year, that was 4 years program. तो मैं 22 में ग्रेजुएट हो चुका था. सो आई पुट दिस इंफॉर्मेशन. आपको एडिशनली जो चीज़ें पुट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ. आपने इंटर और मैट्रिक की डिटेल्स पुट नहीं करनी है क्योंकि वो जनरलाइज डिटेल्स होती हैं, हर स्टूडेंट की सिमिलर होती हैं क्योंकि हम अंटिल इंटर ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट या तो प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं या फिर बायोमेडिकल या फिर कॉमर्स की फील्ड. लेकिन जब हम इंजीनियरिंग की तरफ आ चुके होते हैं या इंटर एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जहां से हम फर्दर मूव हो रहे होते हैं. कोई इलेक्ट्रिकल की तरफ जाता है, कोई मैकेनिकल की तरफ, जैसे मैं सिविल की तरफ आया. आप अपनी फील्ड पुट करेंगे और यहाँ मोर डिटेल्स की जब बात की जाएगी तो मोर डिटेल्स में आपने कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें पुट करनी है. लेट सपोज आई एम अप्लाइंग फॉर कोस्टल इंजीनियरिंग. अगर मैं कोस्टल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन में अप्लाई करना चाहता हूं तो इसका मतलब ये मुझे कुछ ऐसे कोर्सेज पुट करने होंगे जो मोस्ट रेलिवेंट हैं क्योंकि बैचलर्स में हम 40 से ज़्यादा डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं. तो हमें मोस्ट स्पेसिफिक वंस मैं यहाँ पे पुट करूँगा. अगर आपकी CGPA कंसिडरेबल है यू शुड डेफिनेटली पुट. लाइक माई CGPA वॉज 3.81 आउट ऑफ 4.0 एंड वी कैन पुट आवर थीसिस लाइक analysis. So it's not here, so I can write analysis of brilliant blocks for 3D cementitious material. You can write your own specific thesis. और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कुछ कोर कोर्सेज जो मैंने पढ़े हैं. कोर कोर्सेज में आपने जिस उन कोर्सेज का जिक्र करना है जो मोस्ट रेलेवेंट हैं. आप इसको बोल्ड कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट फ्रॉम योर कोर्सेज. लाइक अगर मैं कोस्टल इंजीनियरिंग दैट इज रेलेवेंट टू द एनवायरनमेंट, दैट इज रेलेवेंट टू द जियोटेक एंड फॉर द वाटर. तो मैंने वाटर इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज पढ़े थे. वाटर इंजीनियरिंग आपने ये नहीं मेंशन करना आपने कौन से सेमेस्टर में पढ़ा है. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक. तो इस तरह से आपने जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़े थे. तो ये मेरे कुछ कोर कोर्सेज हैं. आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने भी इनसे ज़्यादा कोर्सेज ऐड किए थे. और इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन आपने पुट करने की ज़रूरत नहीं है. नंबर ऑफ क्रेडिट्स आप पुट करना चाहते हैं तो वो पुट कर सकते हैं क्योंकि 136 क्रेडिट्स हम बैचलर्स में कंप्लीट करते हैं स्पेसिफिकली फॉर सर सैयद यूनिवर्सिटी.
So I have added this information and it is looking like this. Okay, now we are going to add in another section that should be the work experience. अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपकी कोई परमानेंट जॉब या फुल टाइम जॉब नहीं है, तो आपने ऐड करना है अपनी इंटर्नशिप्स. आप अपने इंटर्नशिप्स को एज अ वर्क एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं. अच्छा, आपने यहाँ पे स्पेस का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी सीवी दो पेजेस से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए. अगर आपकी सीवी 2 पेजेस से ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब ये है आप या तो कुछ एडिशनल पुट कर रहे हैं या फिर अननेसेसरी पुट कर रहे हैं. तो स्पेस बचाने का तरीका ये है, हम एडिशनली डिफरेंट जो है हमारे पास वर्किंग एक्सपीरियंस है उनको इस तरह से पुट करते हैं. जैसे मेरी पहले इंटर्नशिप थी सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज, एक कंपनी ऑक्यूपेशन था मेरा जियो टेक्नीशियन intern. I was the intern, so this is my designation. My employer was soil testing services. हमें यहाँ पे भी कंप्लीट एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है. You can simply put city and country. When it was started, let's suppose it was started in the June in 2020. Let's suppose it's just an arbitrary, you can put your own specific ones, and it completed in the September 2020. Okay, let's suppose 2021. यहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटीज बतानी है. तो एक्टिविटीज आपने इस तरह से डिफाइन करनी है कि आपने वहां से लर्निंग आउटकम क्या था. लर्निंग आउटकम से मुराद है क्योंकि आप किसी भी इंटर्नशिप पे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ों में एंगेज रहते हैं. तो वहाँ पे आपने लर्निंग क्या की, वहाँ पे आपने सीखा क्या, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम. तो आपका एक से ज़्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस है, यू कैन ऐड मोर. आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू ऐड, we need to add our research experience. If you have a research experience, it doesn't matter अगर आपकी रिसर्च कोई भी रिसर्च और वो कंप्लीट नहीं हुई है, it doesn't matter, you can add your research because it would definitely gain a added value. Like when I was in my final year and I was creating CV for different programs, because for every program there are different specifications, so you need to create different CV for every program. सो रिसर्च एक्सपीरियंस का ऐसा कोई डिफरेंट सेक्शन नहीं है, आप खुद उसको टाइप कर सकते हैं. रिसर्च एक्सपीरियंस, वी कैन ऐड द सेक्शन, वी नीड टू पुट द टाइटल. दिस वाज माय टाइटल. व्हेन इट वाज स्टार्टेड, इट वाज बेसिकली स्टार्टेड ऑन 25, लेट्स सपोज एनी ऑफ द डेट इन द 6th month of 2020, and it was not completed until I was graduated. So it was going on, but I put the description what the exact outcomes, and उसके साथ मैंने ये लाजमी लगाया था कि मैं उसके साथ क्या मेरे आउटकम्स हो सकते हैं और मेरी रिसर्च कहाँ तक पहुँच चुकी है, उसके आउटकम्स क्या हैं. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने चीज़ ऐड की थी, वो अपने जो सुपरवाइजर था उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक लेटर हेड के ऊपर ये चीज़ें लिख के दें ताकि मैं उन्हें प्रूव कर सकूँ कि आई एम रिसर्च इंटर्न, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी एंड इट्स यूजलेस. सो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स. सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट्स की हेडिंग पुट की और उसके बाद मैंने टाइटल. अब टाइटल, अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिखूँ हर प्रोजेक्ट का सेपरेटली टाइटल पुट करूँ तो ये स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिक. यू कैन डायरेक्टली राइट हियर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टाइटल, एंड यू कैन राइट ऑल द सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स अंडर द डिस्क्रिप्शन. तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से नजर आएगा. इसके अंदर आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस तरह की स्पेसिफिक जो स्पेसेस हैं, स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. स्पेसिंग एक्स्ट्रा नज़र नहीं आनी चाहिए बिकॉज इट डोंट लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज एडिशनल लर्निंग और द सर्टिफिकेशंस. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई सेक्शन नहीं है सर्टिफिकेशंस के लिए. सो आई एम एडिंग ऑन माई ओन. So you can add the heading certifications, add it. Again we are going to like save our space. आपने यहाँ पे अपने किसी भी सर्टिफिकेशन का टाइटल नहीं लिखना है, आपने सिंपली लिख देना है MOOCs, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज. इस टाइप की इसकी फुल फॉर्म है. आपने डिस्क्रिप्शन में अपने जितने ऑनलाइन कोर्सेज कर रखे हैं, आपने हर कोर्स मेंशन नहीं करना है, आपने जस्ट वो सर्टिफिकेशंस मेंशन करनी है जो कि आप जिस यूनिवर्सिटी में, जिस प्रोग्राम में या जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रेलेवेंट है. लेट्स सपोज इफ आई एम अप्लाइंग फॉर द कोस्टल इंजीनियरिंग, देन
environment is really important, sustainable development goals type of things are really important, तो आपने इस तरह की चीजें करनी है। और एडिशनल टिप एक बताता चलूँ आपको, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि यूरोप में ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो सस्टेनेबल रिलेटेड जो भी आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकें वो डेफिनेटली करें। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की चीजें पढ़ सकते हैं वो डेफिनेटली पढ़ें, क्योंकि सिविल से अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसका हर चीज में कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू कोई टच है। तो आपने अपने ऑनलाइन कोर्सेज को किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दिस वॉज माई टाइटल of one of the courses, online courses, nature based solutions for coastal hazard, and the source was online. I did online, and to make it differentiate the source, we can make it italic. So इसमें मेरा लर्निंग आउटकम्स क्या था, आपने इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करनी है, आपने सिंपली इसमें बता देना है कि आपके लर्निंग आउटकम्स क्या थे, 1 या 2 लाइन में। सो इस तरह से हमारी सर्टिफिकेशंस नज़र आएंगी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हो सकती है उसमें आपने पुट करना है ऑनर्स एंड अवार्ड्स। अगर आपकी सीजीपीए कंसिडरेबल है और आपके कोई भी अवार्ड्स हैं, आप उन्हें ज़रूर मेंशन करें। आपने सिंपली बुलेट फॉर्म में अपनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स को पुट करना है। जैसे मैं गोल्ड मेडलिस्ट था अपने बैच से, अपने डिपार्टमेंट से, तो मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी चीज़ें किस तरह से मेंशन की थी। ज़रूरी नहीं है कि आप भी कोई वैलेडिक्टोरियन स्टूडेंट्स हों या फिर आपकी कोई बहुत हाई फाई अचीवमेंट्स हों, लेकिन आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी हाई करके पुट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप भी अचीव की थी किसी भी सेमेस्टर में, आप जरूर उसको मेंशन करें, तो आप इस तरह से अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, इनको सेव करवाएं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है वो है आपके वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। अगर कुछ है वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ अपना वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। देयर इज अ सेक्शन बीनीथ वॉलंटियरिंग में आप लिख सकते हैं कम्युनिटी सर्विसेज, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ आई कैचिंग वर्ड एंड दे respect these kind of things a lot. कम्युनिटी सर्विसेज में आपने कहाँ पे क्या खिदमात कम्युनिटी के लिए सर अंजाम दिए हैं, वेदर यू कैन बी अ वॉलंटियर एट एनी ऑफ द सेमिनार दैट हैज बीन अरेंज्ड एट योर यूनिवर्सिटी, और डिफरेंट आप किसी फील्ड कैंपेन का हिस्सा थे। अवर वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस वुड लुक लाइक दिस, एंड देन यू कैन ऐड द सेक्शन लाइक you are coming here for masters or bachelor's education, so you should know the English language। अगर आपने IELTS अटेम्प्ट कर रखा है तो आपने IELTS को किस तरह से ऐड करना है। अगर आपने IELTS अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी आपने अपने लैंग्वेज स्किल्स बतानी है। लैंग्वेज स्किल्स बताने का एक प्रिसाइज तरीका ये है, आपने अपनी मदर टंग, यू शुड राइट उर्दू। अदर लैंग्वेजेस में आप सिंपली पुट करें इंग्लिश। अगर आपका IELTS का स्कोर है तो आप IELTS पुट करें लाइक I have 6.5 bands overall, you can put like this, or if you don't have IELTS you can simply put CEFR level B2, because जो हमारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारी इंग्लिश जो है B2 लेवल के बराबर है। आप सिंपली यहाँ पे अपनी लैंग्वेज के सेक्शन में इस तरह से पुट करें। हमारी CV ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन कुछ चीज़ें एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें डालनी होती हैं। जैसे अगर हमने किसी सेमेस्टर में, क्योंकि हमारे डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिफरेंट कोर्सेज में हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखते हैं, हमें उन डिजिटल कॉम्पिटेंसीज को प्रिसाइजली वे में, इफेक्टिवली वे में किस तरह से कैश करवा सकते हैं, किस तरह से उनको बता सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं उसको कहता हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन। देयर इज नो सच सेक्शन, यू कैन ऐड इट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आप यहाँ पे टाइटल में पुट कर सकते हैं पर्सनल स्किल्स। सो दीज आर काइंड ऑफ कीवर्ड दैट आर रियली इंपॉर्टेंट। पर्सनल स्किल्स से मेरा मतलब है कि मैंने इसको कहीं और हाईलाइट नहीं किया कि मेरी पर्सनल स्किल्स क्या है। जब कोई मेरी CV को कंप्लीटली गो थ्रू करता हुआ आएगा तो कंक्लूड इस तरह से होगा कि मेरी पर्सनल स्किल्स क्या है, बेस्ड ऑन माय एजुकेशन, बेस्ड ऑन माय डिफरेंट एडिशनल लर्निंग। अगर आपने कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की है जो कि कोई सॉफ्टवेयर है तो आप उसे भी अपनी पर्सनल स्किल्स में ऐड कर सकते हैं। वन थिंग दैट कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ सेमिनार्स, और आपके जो जो रेलेवेंट कोर्सेज हैं, जो जो रेलेवेंट सॉफ्टवेयर हैं, आप जरूर पुट करें। एंड फाइनली इट वुड लुक लाइक दिस। सो वी हैव ऑलरेडी एडेड एवरीथिंग आई थिंक। Now we can proceed to next. Before you continue, please fill the mandatory field marks in red. Okay, we need to put, so basically this is our home address. It was mandatory to put. You can go
नेक्स्ट। सो यहाँ पे आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज प्रेफर दिस टेम्पलेट, आई लव दिस टेम्पलेट बिकॉज इसमें आप जो एक एक्स्ट्रा स्पेस है वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। आप देखें प्रिसाइजली मैनर में सारी चीजें आप फिट कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर दिस कलर, size should be small. You should add the Europass logo but not all the pages, just for the first page. You should definitely put your page numbers. So प्रीव्यू के तौर पे हम देख सकते हैं हमारी सीवी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर टाइपो कहीं पे नजर आए तो आपने अपनी सीवी में कोई भी टाइपो नहीं करना है, क्योंकि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा चाह रहा था आपका टाइम कम लूँ, तो इस वजह से मैंने इस तरह से चीजें ऐड की हैं। So we need to go to the next. Now we can download this CV and we can have a look how it looks like. Now you can give it a name. So I'm giving it the scholarship CV and save in my Europass library. If you would save in my Europass library, you can always come here, come again to log in your account and you can edit. If you feel to add some more information, you can directly download the CV. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें फॉर माई मोटिवेशन, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. Until then, see you.